Hello students, in last class you have studied how to read vernier readings of theodolite instrument. Okay, whenever you measure an angle, you will get reading on the main circle and vernier circle of theodolite instrument. How to read those readings you have learnt in last class. Okay, today we will see how to measure horizontal angles using repetition method and reiteration method. Okay, there are two methods by which you are going to measure horizontal angles using theodolite instrument. Okay, first one is repetition method. This method is used to measure small horizontal angles accurately. Okay, whenever you want to measure the small horizontal angles with accurate precision, that time you are going to use this repetition method. Okay, in this method the horizontal angle is measured several times and value is added mechanically. Okay, in this method you are going to measure same angle in several times. मतलब आप एक ही एंगल को दो से ज़्यादा टाइम्स आप उस एंगल को आप मेजर करते हो. इस मेथड में आप 2 और more than 2 times you are going to measure same angle. Okay, so this is called as the repetition method. Okay, the horizontal angle is obtained by dividing the accumulated value by the number of repetition. Okay, आप एवरेज वैल्यू क्या निकालोगे, मतलब जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आता है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन. आप जितना रिपीटेशन करते हो वो वैल्यू आता है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशंस. यू विल गेट द फाइनल एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल. ओके, यूजुअली 3 रिपीटेशंस विथ फेस लेफ्ट एंड 3 रिपीटेशंस विथ फेस राइट आर अडॉप्टेड. ओके, नॉर्मली हम इस मेथड में 3 रिपीटेशंस लेते हैं, मतलब 3 बार एंगल्स को हम मेजर करते हैं. फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन रख के और फेस राइट ऑब्जर्वेशन रख के 3 रिपीटेशंस हम अडॉप्ट करते हैं. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय दिस मेथड. सी, फर्स्ट स्टेप इज set up the instrument over the station Q and do all the temporary adjustments. Keep the vertical circle to the left. Okay, see, this is the station Q, this is station P and this is station R. Okay, on this station you have to set your theodolite instrument. Okay, you have to set your theodolite instrument on this स्टेशन एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑल द टेम्पररी एडजस्टमेंट. आपको इस स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट करके टेम्पररी एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करना होगा. वो सेटिंग अप, लेवलिंग और क्लियरिंग द ऑब्जेक्ट पीस एंड आई पीस, ये तीनों एडजस्टमेंट्स आप परफॉर्म करके मतलब इंस्ट्रूमेंट को सेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज set the vernier A to 0 with help of upper clamp and tangent screws. Note the readings of vernier A and B. आपको क्या करना होगा, वर्नियर A को 0 पे सेट करना होगा. ओके, यू हैव टू सेट वर्नियर A to 0 and वर्नियर B to 180. ओके, you have to set the A to 0 with help of the upper clamp, and for minor adjustments you have to use the upper clamp, means upper tangent screws. Okay, you have to set vernier A to 0. Next step is loosen the lower clamp and turn the telescope towards the left signal at P. Okay, clamp the lower clamp and bisect the point P exactly using lower tangent screw. ओके, आपको क्या करना होगा, सी, यहाँ आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो. ओके, यू हैव टू सेट द इंस्ट्रूमेंट. यू आर गोइंग टू सेट द इंस्ट्रूमेंट ऑन Q. यू आर गोइंग टू सेट द वर्नियर A to 0. ओके, आपको क्या करना होगा,
लोअर क्लैंप स्क्रू, जब आप लोअर क्लैंप स्क्रू अनक्लैंप करते हो और इंस्ट्रूमेंट टर्न करते हो तो आपका उस इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग चेंज नहीं होता है. ओके, द रीडिंग विल नॉट चेंज. ओके, बाय लूजिंग द लोअर क्लैंप स्क्रू यू हैव टू बाइसेक्ट द पॉइंट P, signal P. Okay, this object you have to bisect through the telescope. आप टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना होगा. ओके, एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए आपको टेंजेंट स्क्रू यूज करना होगा. ओके, यू हैव टू यूज द टेंजेंट स्क्रू एंड यू हैव टू एक्यूरेटली बाइसेक्ट दिस ऑब्जेक्ट. ओके, आप इस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हो तब रीडिंग कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि लोअर क्लैंप स्क्रू अनक्लैंप रहता है, मतलब तब रीडिंग्स चेंज नहीं होता है. ओके, जब आप अपर क्लैंप स्क्रू लूज करते हो, अनक्लैंप करते हो, तब रीडिंग्स चेंज होता है. ओके, आफ्टर दिस सी लूजन द अपर क्लैंप एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट क्लॉकवाइज टू बाइसेक्ट द सिग्नल एट R. ओके, clamp the upper clamp and bisect are exactly using upper tangent screw. ओके, अभी आपका जो बाइसेक्ट किया रहता है वो P पे रहता है. टेलीस्कोप आप यहाँ P पे सेट करते हो, मतलब बाइसेक्ट करते हो, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ रहता है ना जो आपका टेलीस्कोप, तब आपको अपर क्लैंप स्क्रू लूज करना होगा, मतलब अनक्लैंप करना होगा. आप अपर क्लैंप स्क्रू अनक्लैंप करके आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इस R ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना होगा. ओके, यू हैव टू लूज द मीन्स यू हैव टू अनक्लैंप द अपर क्लैंप स्क्रू एंड यू हैव टू टर्न द टेलीस्कोप इन clockwise direction. Okay, you have to turn the telescope in clockwise direction and you have to bisect the R object. Okay, this is the R signal. You have to bisect the signal R. Okay, now you will get the reading, means you will get the angle PQR. Okay, you will get the reading and you will get the angle PQR. Okay, see, read both verniers to get approximate value of the angle PQR. आपको क्या करना होगा, वर्नियर रीडिंग्स को रीड करना होगा. ओके, नेक्स्ट, अनक्लैंप द लोअर प्लेट एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू साइट द सिग्नल P अगेन. ओके, आपको क्या करना होगा, अभी आपको यहाँ रीडिंग मिला है, तब आप क्या करते हो, जब आप R ऑब्जेक्ट को साइड करते हो तब आपको अपर क्लैंप करना होगा. अपर क्लैंप स्क्रू आपको क्लैंप करना होगा, मतलब आपको उस स्क्रू को फिट करना होगा, मतलब आपका रीडिंग चेंज होना नहीं चाहिए. ओके, जब यहाँ से यहाँ आता है टेलीस्कोप तब आपका रीडिंग चेंज होता है. जब आप इस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हो तब आपका रीडिंग चेंज होना नहीं चाहिए, मतलब तब आपको उस अपर क्लैंप स्क्रू को फिट करना होगा. ओके, उसके बाद आप क्या करना होगा, लोअर क्लैंप स्क्रू लूज करके टेलीस्कोप को अगेन यू हैव टू टर्न द टेलीस्कोप एंड यू हैव टू बाइसेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अगेन. ओके, यू हैव टू लूज द लोअर क्लैंप स्क्रू एंड यू हैव टू टर्न द telescope in clockwise direction only and you have to bisect this object. Okay, you have to clamp the upper clamp screw. Okay, this keep in this mind. Okay, जब आप यहाँ बाइसेक्ट करते हो, जो आपका रीडिंग यहाँ से यहाँ रहता है वही सेम आपका यहाँ रीडिंग कंटिन्यू होता है. ओके, मतलब सी, अभी आप यहाँ बाइसेक्ट करके अपर क्लैंप लूज करके यहाँ जो बाइसेक्ट करते हो, समझो आपका रीडिंग 40 डिग्री आया. ओके, इफ यू गेट मीन्स यू विल गेट सम रीडिंग से 40 डिग्री. ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, अपर क्लैंप जो अनक्लैंप रहता है उसको क्लैंप करके आप क्या करते हो, अगेन यू विल टर्न द टेलीस्कोप एंड यू विल बाइसेक्ट दिस P ऑब्जेक्ट. तब क्या रहता है, आपका रीडिंग 40 डिग्री ही रहता है. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू अनक्लैंप द upper clamp screw. Okay, you have to loose the upper clamp screw, again you have to turn the telescope in clockwise direction and you have to again bisect the object
R. Okay, again you have to bisect the object R. Okay, जब आप अनक्लैम्प करके अपर क्लैम्प स्क्रू को अनक्लैम्प करके जब R को आप बाइसेक्ट करते हो, आपका रीडिंग 40 से समझो 80 आता है, मतलब जो 40 का डबल आपको रीडिंग मिलता है. ओके, आप सेम ऑब्जेक्ट जो बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब पहला उसका रीडिंग 40 आया है तो उसके बाद उसका डबल ही आ जाएगा. ओके, यू विल गेट द रीडिंग ट्वाइस द 40 डिग्री. ओके, यू विल गेट द रीडिंग 80 डिग्री. ओके, अभी क्या हुआ, 1 रिपीटेशन हुआ, 2 रिपीटेशन हुआ. उसके बाद आपको इस अपर क्लैम्प स्क्रू को क्लैम्प करके लोअर क्लैम्प स्क्रू को लूज करके फिर से आपको इस टेलीस्कोप को रोटेट करके फिर से आपको P ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करना होगा. ओके, यू हैव टू बाइसेक्ट दी P ऑब्जेक्ट अगेन एंड यू हैव टू next you have to unclamp the upper clamp screw. Again you have to turn this telescope in clockwise direction and you have to bisect the object R. Okay, you have to bisect the object R. जब आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हो तब अपर क्लैम्प स्क्रू अनक्लैम्प रहना चाहिए, मतलब उस स्क्रू को आप लूज करके इस ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना होगा. अभी आपका यहाँ से यहाँ आया तो उसका रीडिंग 80 रहता है. जब आप अनक्लैम्प करते हो अपर क्लैम्प स्क्रू को तब आप 80 से आपको 180 डिग्री, मतलब अगेन 40 जो 80 में 40 अगेन आपका ऐड हो जाएगा. ओके, जब 40 मतलब यहाँ 40 आया तो नेक्स्ट 80 एंड नेक्स्ट यू विल गेट 120 डिग्री. ओके, इसका बीच का जो रीडिंग है 40 डिग्री हो, 40 डिग्री ऐड होता जाएगा. ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ आया तो आपका 3 रिपीटेशंस खत्म हो जाता है. ओके, दिस इज विथ फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका वर्टिकल सर्कल फेस लेफ्ट पे रहता है. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू मेक द टेलीस्कोप मतलब वर्टिकल सर्कल टू द फेस राइट एंड अगेन यू हैव टू परफॉर्म all these operations once again. Okay, you have to take 3 readings with face left observation and 3 readings with face right observation. Okay, so you have to perform this operation for 6 times. Okay, आपका जो फाइनल रीडिंग जो आता है, मतलब फाइनल एवरेज रीडिंग जो एंगल PQR इज इक्वल टू जो आपका फाइनल रीडिंग 120 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ repetitions. Okay, this is the 120 degree divided by number of repetitions. You will get the average angle. Okay, आपको ये average angle मिलता है. Okay, this is the repetition method. Now we will see the reiteration method. Okay, see this is the table. जो रिपीटेशन मेथड जो आप परफॉर्म करते हो, आप कैसे उस टेबल को ड्रॉ करके कैसे आपको रीडिंग लिखना है ये देखो. ओके, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एट. ओके, इंस्ट्रूमेंट आप ओ के स्टेशन के ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट रखते हो. ओके, साइटेड टू जो आप किस स्टेशन को किस सिग्नल को आप साइट करते हो. आप फर्स्ट क्या करते हो, ओ स्टेशन को रख के पी सिग्नल को साइट करते हो. ओके, आपका पी साइड को जब आप साइट करते हो तब आपका रीडिंग क्या रहता है, 0 रहता है. ओके, वर्नियर ए 0 डिग्री रहता है, वर्नियर बी क्या रहता है 180 डिग्री पे रहता है. ओके, वो आप यहाँ फेस लेफ्ट है और फेस राइट है. ओके, फेस लेफ्ट के ऑब्जर्वेशन में 3 रीडिंग्स, फेस राइट ऑब्जर्वेशन में 3 रीडिंग्स. आप पी से आप क्यू मतलब आप क्या करते हो, आर ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हो अपर क्लैम्प लूज करके, तब आपको रीडिंग मिलता है. ओके, ये वर्नियर ए मेन स्केल को क्या मिलता है आपको 0 डिग्री मिनट सेकेंड. ओके, बाद में आपको इफ आपको वर्नियर रीड करना होगा तो आपका क्या रहता है, वर्नियर में मिनट और सेकेंड रीडिंग रहता है. ओके, यू हैव टू राइट द रीडिंग्स इन दिस फॉर्मेट. ओके, आप सब ऑब्जर्वेशंस लेके बाद में उसको एवरेज निकालना होगा. ओके, दिस इज द टेबल फॉर द एंटरिंग द ऑब्जर्वेशंस. ओके, इन नेक्स्ट
class I will in next video I will explain you the reiteration method of measuring the horizontal angle. Thank you.